आईडी था शायद पहले। Okay. चलो कुछ नहीं स्टार्ट Oh, हो man. गया। स्टार्ट नाउ। 3, 2, 1. श्योर 3 2 1। हेलो, हम मिल रहे हैं एक साल बाद। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल है? मैं ठीक My ठाक। name is Mohammed Ali. And my name is साहिद हसन मंसूरी। हम quite literally physically एक साल बाद तो नहीं मिल रहे, but on the Yeah. screen हम एक साल बाद मिल रहे हैं। How are you feeling? How are the nerves? Yeah, I'm just very nervous, man. You know, it's a dream come true for me to be on this platform finally. Alhamdulillah. अच्छा, नहीं, बिलाल साहब तो is pretty actively into podcasting, लेकिन मैं तो I think it's been a while since I've been in front of a camera. Has it been a while? You were about to do that series. You know, you made account UI UX with Hassan Mansoor. वैसे हम मुझे लगा था कि I think 3-4 महीने पहले I did make my last video as well, तो ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा वैसे भी Recordex में भी कुछ ना कुछ वीडियोस Oh yes, yes. तो But obviously it's not that natural, you know. हाँ, लेकिन तुम तो लिटरली अभी Yeah. पॉडकास्ट से आ रहे हो। हाँ. तो it's not वो क्या कहते हैं, इतना consistent नहीं है. क्या चल रहा है? What's happening in life? Sorry, before you give the answer, we made a pact last year. आप लोगों को याद ही होगा, मुझे याद नहीं था, पता नहीं बस वो कैसा ख्याल आया वैसे आपके? मुझे कहने लगा था fate plays out या अल्लाह ताला की तरफ से I don't know, I just it hit me कि मैं कोई वीडियो देखना चाहता हूँ मुझको टीवी की, and I opened up that account. और मैं वीडियो तो कुछ और देखनी थी, मैंने वो देखी। कौन सी देखी? I think it was that वो वाली प्लांटेशन ड्राइव, और फिर हमने वो किया था ना कि जो चीज़ें साफ सूफ की थी। तो I went back to the channel and I saw that we made a pact वाली वीडियो ना। और मैंने स्क्रीनशॉट भेजी बिलाल भाई को। I'll put a screenshot of that conversation here as well, कि कब मिलना है यार दोबारा उस वीडियो को क्रिएट करने। For sure. और फिर मैंने अब ये भी किया है कि I put it in my calendar as well, कि हर साल repetitive मुझे recurring आए। Twice a year. Once a year नहीं? Twice a year से हर 6 months के बाद था पैक्ट तो। अच्छा, नहीं, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी पूरी 1 साल पहले। वो तो 1 साल पहले बनाई थी, लेकिन पैक्ट था हर 6 months का। अच्छा, चलो we can think about it। वैसे मुझे 1 year वाला ज़्यादा सही Fair लगा, enough, but चलो, मैंने वैसे साल का ही लगाया था। बट या उसके अलावा मैंने थोड़ा सा, फिर मैंने एक बंदा वो नहीं होता, आई थिंक रैबिट होल कहते हैं, Down the memory lane. I opened up our Twitter as well, फिर उसमें मैंने वीडियो देखी, हमने बनाई थी, वो नहीं था सर्विस एड वाली। मेहंदी के ज़बतरी फंक्शन में। मुझे it was very weird, but I wasn't even able to honestly recall कि ये कब बनाई, ये क्या सीन था। No way. और मतलब generally like the whole account and all of the videos as well, अब you know how life happens, I genuinely can't even seem to recall कि हमने ये चीज़ें कब की हुई हैं, but I'm very glad that we made that channel because we have a repository of everything that we did. Yes. We have like a literal digital repository of our growth. For real, for sure. Especially when it comes to me, क्योंकि मेरा तो उसके बाद भी चलता रहा content journey, and but even for you, कि मतलब वो we were like, he started HM Vlogs. I think he has told the story multiple times, लेकिन कोई नहीं. He started HM Vlogs. I started this channel named We Love Ya Rasulullah, and we were like making videos together simultaneously. And we were like, making videos parallel to each other. Yes. He was on his own account. So I was like, dude, let's just start a podcast. He was like, podcast क्या करेंगे हम? Vlog करते हैं। मैं कहा, dude, vlog तो करते हैं, लेकिन दो बैठे हुए हैं, एक 19 साल का है, एक 16 साल का है, दो बैठे हुए हैं और वो सीरियस टॉपिक से बात कर रहे हैं। He was like, अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं, and we tried it on, and it we kept on doing it for like good 2-3 years on and off. ठीक है, हमारा एक मसला ये है, अभी तक है मेरे पास, मेरे साथ है वो, कि जब भी मैं थोड़ा सा वायरल होता हूँ ना, या मैं थोड़ा सा स्पाइक कर रहा होता हूँ, I just go on a break. ठीक है ना, and I just feel it's fate at this moment. So I just I'm very easy with it. I'm not क्या कहते हैं उसको, harsh on myself कि यार क्यों करता है ब्रेक, क्यों नहीं करता। I just feel कि खैर है, वक्त जब लिखा होता है, जब कोई चीज़ लिखी होती है तो उस टाइम पे आ जाती है। शायद जल्दी फेमस होना भी wasn't good for us। ठीक है, फेमस तो खैर हम अभी भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन लेकिन वैसे मैं कुछ को टीवी में जो मेरे साथ इश्यूज होते थे, मैं वैसे अब सी open up to that. I still see, I think some of them happening, कि मतलब I do have this, I don't know, I wouldn't call it creative problem, कि I have this problem with
finishing things, like putting a pin in things कि मतलब अच्छा एक project शुरू किया है for example, खत्म नहीं कर पाते आप. मतलब उसका जो ending it's almost always messy, Okay. which is something that I struggle with a little bit and I do actively work on it, but I think वो भी कुछ को TV में मतलब मेरे end से एक issue. You're like that meme जो कहता है सर वो अच्छा बना होता है, सर पूरा बना हुआ है. अच्छा नीचे बस stick वो I'll put that meme here as well. Yes. But I get your point. मतलब the starting off is amazing, you know, it's brilliant, everything's happening. Every exam ever. And but in the end I just I think lose my thought process. But circling back to that question that I interrupted you with, what's happening in life? ये आज हम हैं 22nd है ना, आज 21st है. 21st शुरू हो गया. Yes, 21st मई को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. आई होप हम लोड जल्दी करते हैं इसको. Inshallah. It's 2:20ish a.m. in the morning. Yes, 2:25 a.m. 2:25 a.m. So what's happening in life is that we both are on a roller coaster of a ride. Alhamdulillah for that as well. Okay, we have tried out multiple things. We have seen growth multiple times. मतलब alhamdulillah काफ़ी अच्छे लेवल की किसी भी सेंस में कह लो वो आप, चाहे वो मॉनेटरी सेंस में कह लो या फिर इंटेलेक्चुअल सेंस में कह लो या स्पिरिचुअल सेंस में भी कह लो इवन. तो वी हैव सीन ग्रोथ और वी हैव सीन ऑब्वियसली बैड पैचेस एज वेल. एंड इसी तरीके से इट्स बीन अ जर्नी. आई कैन नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली बट यू नो सम मेन अचीवमेंट्स आर के किताब लिखी है अलहमदुलिल्लाह तीसरी. Habibullah is there, Habibullah is growing. I finally, you know this firsthand कि I always wanted to talk publicly. ठीक है ना. So that was one consistent attribute of my personality that I wanted to do for a very long time. But वही बात है, I think Allah was preparing me throughout कि I was not ready yet. कि I literally मुझे याद है 21 में I got a TED Talk की opportunity. मेरे स्कूल में था. ठीक है ना. एंड समवन रीच्ड आउट टू मी एंड फॉर वेरी आई डोंट रिमेंबर कि शायद हम मालम जब जा रहे थे ये क्या वजह थी, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू डू इट. या फिर शायद एंड पे कोई लास्ट मिनट कोई चेंजेस हो गए थे, आई डोंट नो, बट आई वाज नॉट एबल टू डू इट. बट आई वाज लिटरली इनवाइटेड एंड आई डिडंट अटेंड दैट. नहीं कैंसिल नहीं हो गया था. नहीं हो गई थी. अच्छा. बल्कि हाँ यही हुआ था वो. यार आई एम नॉट श्योर, फिर वाले देख भी रहे हैं. ठीक है ना. But something happened, but I was invited and but I was not able to do it. So I was very sad about that कि यार मैं TED Talk नहीं की, but I still think कि शायद अच्छा नहीं की. It was but I had to go through all this. So it's there. ठीक है. बाकी financially we have tried out multiple things दोनों ने. ठीक है ना. We have alhamdulillah we have achieved good as well. ठीक है. Obviously इसमें कोई सेट पैरामीटर या बेंचमार्क भी नहीं होता. इट्स जस्ट यू नो व्हाटएवर मेक्स यू स्लीप गुड एट नाइट. ये भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब यू नॉट सो एंशियस कि आपको नींद नहीं आ रही रात को ना, मुतमईन होके मतलब इतने आप चेजिंग शुरू कर दिया आपने. तो अलहमदुलिल्लाह उसलिए आज से आई एम कंटेंट विद माई लाइफ हाउ इट्स गोइंग. ऑब्वियसली एस्पिरेशंस आर ऑलवेज देयर, न्यू थिंग्स आर ऑलवेज देयर, बट कुछ बड़े मज़े के इंसिडेंट भी हुए हैं. ठीक है ना. तुम्हारे तो काफ़ी इवेंटफुल सी रही है पिछला साल. गाड़ियाँ और डाले और वीगोज और चिट्टी काली नीली पीली. ठीक है. तो उस तरह की चीज़ें भी हुई है, उस तरह की चीज़ें भी देखी है, ये दुनिया भी देखी है मैंने. और या तो इट्स बीन वेरी फन आई गेस. What about you? My past year has been a lot of things. It's been a lot of emotions. हाँ, it's been a lot of emotions, honestly. Emotions पे मैंने बात नहीं की. I guess I think that मैंने emotions पे बात नहीं की. Okay. But like generally, it's been an intimate sort of year in which I've been. Are you in love? नहीं, it's not. No. उस तौर का intimate की मैंने बात करी. नहीं, intimate in the sense that you were very feeling everything very deeply. मैं बताता हूँ. It was a very intimate sort of year, जिसमें I was able to share a lot of emotions with a lot of people that I love. और open up as well. क्या मतलब with people या on in here? नहीं, मतलब वो लोग को खुल भी पाया, ओपन अप किया. हाँ, मैं वही कहने लगा. मतलब ट्रॉमास नहीं उस सेंस में नहीं. मैं वही तो कहना, was a lot of emotions. ट्रॉमास भी हो सकते हैं, but like ट्रॉमास तो होंगे. What I mean is कि मतलब वैसे मेरे साथ कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, but I was able to cannot achieve intimacy without not healing. मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरे पर्सनल ट्रॉमास तो नहीं थे alhamdulillah, but I was able to help people in their own traumas, the people that I love, so which was
a very wholesome experience alhamdulillah. और उसके अलावा I mentioned I think in my last video, in our last video as well, कि you know I do UX designing and it's something that I genuinely am very passionate about, and you're doing very good at mashallah. Thank you so much. And I'm very I want to do more in it. और पिछले साल में I was able to convene over the first UI UX design conference in Pakistan. और that's great. alhamdulillah मुझे वो एक opportunity मिली. I was able to make friends with a lot of good people in the field. उसके अलावा I was able to actually tap into leadership skills, and I was able to build a team at a place that I work. और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी टीम बना पाया. You do realize you literally mentioned the name of the place थोड़ी देर पहले. नहीं. Yes, you did. अच्छा चलो whatever, doesn't matter. But there's a place that I work at. और उसके अलावा I was also able to get a lot out of my comfort zone, which was not something that I honestly saw happening, because जिंदगी ले आती है आपको. नहीं, honestly it was a choice. It was a choice because मेरे लिए ना comfort और convenience के दरमियान की lines बहुत blur हो चुकी हुई थी, which I realized बाद में जाके, like around the end of like जो पिछला हमारा year था अब तक इस point तक कि मतलब my convenience in things is something entirely different, which is not wrong, and I should like chase convenience at times. That's perfect. अगर है तो लो उसको. Exactly. फायदा उठाओ उसका. But being comfortable and just being stuck in a place जहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि enlighten people please. मतलब for example if I talk about my health as well, मतलब financially से बिलाल ने mention किया हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो हम दोनों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है at this point, तो हम जब कमा रहे होते हैं तो अपने लिए होता है, तो it's very easy to start indulging. और बस उस indulgence के साथ बिलाल के तो शायद मतलब वो metabolism ठीक होगा, मेरा इतना metabolism अच्छा नहीं है, my gut health is not that good, and I just indulged a lot. और मैं foodie भी हूँ by heart, and I just indulged a lot and I went pretty overboard. I skipped the gym because I wanted to work, and it's not about the gym generally, it's just about not having an active lifestyle. I had a very sedentary lifestyle, and I realized unhealthy lifestyle. A very unhealthy lifestyle. And I realized कि यार what are these choices that I'm making? And what's the point of this money if I'm not even feeling good about my health? Okay. एक तो ये point था, हाँ recent, और एक दूसरा एक बड़ा major ये point था. And this is me generally opening up. I haven't even talked about this with anyone else. Sure. But I got very comfortable. मतलब extremely comfortable with where I was working, and to the point कि it was very hard to take a step back because good one. I had everything. I love it. I genuinely had everything. I had respect. Alhamdulillah. Comfort, cushion. I respect. I had comfort, cushion, very understanding. Payroll, payroll, team, leadership. Exactly. Yes, I was very respected, and I had everything. You know, that's the dream life. But I had to like somehow tap in and realize that this was never what I wanted. I think this thing, you know, because हम दोनों की families की भी synergy हुई है. इस तरह हम दोनों की synergy है ना, इस तरह हमारी families की भी synergy है, which is very cute thing as well. कि मतलब, you know, our families are very deeply connected, and I would like to आ रही है वैसे में बात कि हर मुश्किल वक्त में, you know, we are very together. एक तो हम लोग रहते ही बहुत करीब है. That's like we literally live, I think 0.5 किलोमीटर दूर होंगे शायद. हाँ, it's like 5-minute drive. हाँ, 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट. ठीक है, और कोई किलोमीटर की शायद वॉक होगी. तो वी आर वेरी वेल कनेक्टेड इन द सेंस कि कोई भी मुश्किल वक्त होता है या कोई परेशानी वाला वक्त होता है तो यू नो वी सी ईच अदर देयर. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिश्ता उस लिहाज से. प्लस नॉट मी बट my other 2 brothers and his other 2 brothers, even himself, they literally meet each day, almost every day. Every day, almost every day. In fact, every day each. I don't think you meet them every day, but बाकी जो दो हैं, the 4 of them, they meet every day, every single day. तो at workplace. तो उससे होता ये है कि obviously there is a lot of fun, there is a lot of chemistry, there is a lot of comfort, cushion, understanding, respect.
लेकिन I realized this while working on my own roads, though I have worked with you guys as well, जहाँ पे हमें मौका मिला, हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, लेकिन I on working on my own terms on road in institutions and organizations which did not own me anything, which were not my blood relationships, ठीक है, which were not my mates और दोस्त और भाई, they were literally strangers to me. तो I learned a lot of resilience over there, कि उस तरह की जगह में, उस तरह के डायनामिक्स में कैसे इज्जत कमानी है, कैसे जगह बनानी है, और कैसे सर्वाइव करना है. इट शोड अ लॉट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ वन कैन क्रिएट. इट एडेड अ लॉट ऑफ पोटेंसी टू दैट. ठीक है. इफ आई मे मेंशन हबुल्ला इज वन ऑफ देम, जो कि लिटरली एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से बैक्ड एक प्रोजेक्ट है उनका, वर्टिकल है. इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. इसके अलावा काफ़ी और जगहों पे काफ़ी नॉन प्रॉफिट भी है इवन. ठीक है. आई हैव वर्कड एंड आई हैव मेड माई वे अप देयर विदाउट एनी दोस्ती ताल्लुक वगैरह, ऑन माई ओन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, एंड दैट टीचेस अ लॉट अबाउट लाइफ एज वेल. Definitely it does. ठीक है. एंड इट टेक्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट बिकॉज नो वन इज गोइंग केयर कि आपके छोटे भाई की शादी का बेटी हुई है नहीं हुई, या फिर ओ बाय द वे दैट्स अनदर थिंग एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद two, not one, two. अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल डॉटर्स. ठीक है. nieces वैसे तो, लेकिन आई कॉल देम डॉटर्स. तो लेकिन आपके भाई की बेटी हुई है या नहीं हुई, इसका नहीं फर्क पड़ता वहाँ पे आपने अपडेट दे दी. किस वर्क प्लेस में आपको पैटर्निटी लीव मिलती है इन पाकिस्तान? यस. 1 week. हाँ. 1 week and that's at good places. हाँ. That's the max paternity leave. यस. एंड चाचू की थोड़ी होती है. चाचू की कौन सी भाई तू आ. बट उसके अलावा लेकिन वैसे while I touch on this, I think it's very clear for me to reinforce here that this workplace और ये जो सारी हम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, I will forever be indebted to it because it's given me everything. मतलब obviously मतलब exposure, initial exposure, पहला कस्टमर, पहला क्लाइंट, पहली गेम, पहला मैच. असल में मैं बात नहीं कर रहा था कि I love what I do, और उसके सेकेंडली बात, and I'm promise I'm being very humble right now, I know I'm very good at what I do. और उसकी रीज़न ये नहीं है that I'm like inherently good, उसकी रीज़न सिर्फ एक है that I've made so many mistakes, and this organization has taken the brunt of all of my mistakes every single time, which is why I will always be indebted to that place. No worries, no problem. और no doubt about that. और वैसे भी मतलब फॉर द कमिंग ईयर के जो मैंने प्लान में, और मतलब बंदा एक चीज़ सोचता ही है ना, वो तो आगे अल्लाह ताला की मर्जी है, यू नो हाउ लाइफ प्लेज आउट, यू नेवर नो. बट एवरीथिंग दैट आई हैव प्लान्ड, उसमें आई हैव ऑलवेज never kept them out. never kept that out. I've always put this at a priority कि यार ये चीज़ हिंडर नहीं होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ, इसकी प्रोग्रेस का तो कुछ छेड़ना ही नहीं है ना. Everything needs to happen at the same time. I need to automate it so I don't have to intervene in things, but it has to keep on growing. It has to become a system of its own, right? I cannot leave it. तो और वैसे उसके अलावा मतलब और चीज़ों की बात की जाए तो ओवर द पास्ट ईयर मेरी फैमिली की ना एक NGO थी that has been existing for the past 40-60 years, but it was pretty dormant. और बस पिछले साल से मेरी फैमिली थोड़ी एक्टिव हुई, and I spent the full year with them as well actually. और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर भी एक टीम बना ली है, और उसकी भी ग्रोथ पे मैं काम कर रहा हूँ, which is obviously purely pro bono work. उसमें I don't take anything home for it aside from the fact that it helps me sleep better at night. So that's a good thing. That's a fun experience as well, alhamdulillah. And I think साल की प्रोग्रेस को इसी तरह पता करता है, थोड़ा जनरलाइज करके करना पड़ता है, थोड़ा सोलिस्टिकली देख करके करना. हाँ मतलब अभी तुम बताना शुरू किया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तुमने बताना शुरू किया कि अच्छा ये हुआ, तब मैं बैठ के सोच रहा था कि अच्छा मैंने बोलना क्या है. मुझे ख्याल आ रहा था कि मतलब मैं क्या बोलूँ. But Allah Ta'ala has been very kind to both of us. For sure. And we couldn't be more grateful. Or I think it's very important. I am speaking for myself, not for you, but I know that it's very easy to get into comparison, especially if you see so many people around you seeing so many things, doing so many things on a daily basis, and posting about so much things, and it gets so hard for you to not compare yourself, but at the same time it's very pertinent for us to understand that I'm 21 and you're 23, right? Basically turned 24.
Yeah, 11th May. 24, yeah, I'm 21. That I think your birthday is coming up ना इस साल ही. हाँ मतलब ऐसे आएगी अभी. 4-5 महीने बाद हाँ. मतलब लेकिन but the point is that we're pretty young हाँ. and we have done a lot of things और उस सब में अल्लाह ताला का कमाल ही है कि पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई मुझे. Again, as I started off, I don't even recall and I cannot even bring myself in those situations कि how did we find all this energy, find all this courage, find all this confidence to get up at 8 in the morning, get into a car, drive all the way over there, pick up things, etc., and then make a whole video about it, then sit down and edit that video and post it online, and then talk about it to people. That's crazy, yeah. That's pretty damn crazy, honestly. Yeah, for sure. Alhamdulillah. You know, one thing I really like, and I think it's a very good lesson for anyone who is hustling in life as well. Ke always look at the process and never the results, because it's very easy to see anyone above there and feel कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कि अच्छी चीज़ भी है, लेकिन it shouldn't make you anxious. It shouldn't make you anxious. It shouldn't make you lose contentment at the end of the day. Because obviously थोड़ा सा फ़र्क है हम दोनों का, इसमें वर्ल्ड व्यू फ़र्क है, तो लेकिन प्रोसेस इज़ समथिंग जो कि ना आपको अपना जब भी आप देखते हो ना प्रोसेस किया मैंने यार, you feel very content. I feel very content because I have never had shells of trophies. Okay? I have always had shells of failures, rejections, mocking and disappointments. ठीक है ना, and everyone is well, मतलब मज़े की बात है, पर जब वक्त अलग अलग बदलते हैं ना तो फिर ये चीज़ें जो है ना कूल बन जाती है. बताना पहले ये चीज़ें ना बड़ी आपको इंसल्टेड फीलिंग हो रही होती है, लेकिन जब अलग वक्त बदलते हैं यू फील वेरी कूल कि एक्चुअली आई जस्ट फील दैट क्लास, क्योंकि पता है मतलब अगर खराब हो गया मैं अब नो वन कैन नो कैन रियली लाइक अच्छा तुमने वो क्लास फील की थी, रिजेक्टेड हो, ऐसा नहीं होता होगा. But it becomes a cool backstory, oh my god, I had so much struggle. तुम बात कर लो. हाँ करो. असल में मुझे ना इस बात का मतलब थोड़ा ज़्यादा हिट तब हुआ जब रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ना, और उस फ्रेंड से मतलब एग्जैक्टली बात का जो आउटकम निकला वो ये निकला दैट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देयर इज डिफरेंट merits to level someone on, to basically weigh someone on. मतलब जब आप स्कूल में होते हो तब it's your grades, when you're in your college life तब it's your मतलब FSC के marks या आपके OA level के क्या grades थे. When you get into university it's about your social life, मतलब that's the metric यार, अच्छा आप कितनी stories post कर रहे हो और क्या life जी रहे हो आप. And as soon as you get out of that bubble it's your paycheck. It's always different levels of कि यार अच्छा आप किस लाइक स्केल पे आ रहे हो. और मतलब जो आप बात करो ना फेलियर्स की, वो रिडेम्पशन वाली जो चीज़ होती है, आई थिंक इट हिट्स इन व्हेन यू कम एट दैट लेवल एंड यू रियलाइज कि अच्छा यार जो मेरे पास मेरिट्स थे उनमें आई वाज बिहाइंड फ्रॉम एवरीवन एल्स, बट एट द सेम टाइम अब जो मेरिट्स हैं, अब जो स्केल है उस पर आई एम फार अहेड ऑफ दोज, इवन दोज पीपल हु वर अहेड ऑफ मी ऑन इन दोज पास मेरिट्स. एंड that's where that redemption वाली चीज़. But उसका अगर हम थोड़ा करते हैं इसको तो फिर ये भी थोड़ी ये ख़त्म थोड़ी हुआ है ज़िंदगी. क्या पता, मैं वही कह रहा हूँ ना, कल को वो आपसे सो जंप मार ले, हो सकता है इससे अगले हमारी स्टेज हो बच्चे, हाँ like you know whatever. तो yes, spouse as well actually. Yeah, spouse as well. I think we've tapped into a lot of different conversations and I think let's put a pin in it for now. Yes, I will talk about you and I will talk about you कि कैसे जो है ना I am really very inspired by you. लेकिन I have mentioned it multiple times as well and I have mentioned it हर जगह पे. ठीक है, नहीं वाकई कि this guy we were young, he's younger than me. वैसे तो एज भी मैटर नहीं करती. मज़े की बात मैं सोच रहा था कि when you're Nobel Prize winner ना, no one sees कि आप 49 के हो या 21 के हो, it doesn't matter. Potential is nice to see, but potential means कि you have not made it yet. When you made it ना, तो you made it. It's not like potential है,
तो पोटेंशियल होना किसी चीज़ का, समवन सेइंग यू हैव पोटेंशियल मींस कि यू स्टिल लैकिंग, कि तुम अभी तक उस लेवल के हो नहीं, पोटेंशियल है, ठीक है। तो व्हेन यू हैव डन समथिंग ना इन लाइफ, तो फिर पोटेंशियल, यू बीइंग द यंगेस्ट और नॉट द यंगेस्ट और व्हाटएवर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, यू हैव डन इट एट व्हाटएवर एज, एट व्हाटएवर कॉस्ट, यू हैव जस्ट डन इट। If you have not done it, then you can see the variables. Oh yes, he has the age, he has the mind, he has the resources. Yeah, he can potentially be someone. Mm-hmm. But when you are someone, no one bothers seeing oh, what's your age or what's the struggle and whatever. So never be happy when someone's saying, you have good potential, because that means you're still not there yet. That's an interesting way to think about it. Yeah, you're not still there yet. It means that you're not competitive enough to be on the big league. Because when you're in the big league, no one cares to see कि तुम्हारी एज क्या है, ठीक है, या तुम्हारे में कितना पोटेंशियल था या कितना पोटेंशियल नहीं था. इट मीन्स कि यू आर देयर एंड यू आर विनिंग इट, ठीक है. पोटेंशियल की बात उस बच्चे की होती है जो कि अभी अंडर 16 खेल रहा है. क्या पोटेंशियल है लड़के में, खेल सकता है पाकिस्तान के लिए, खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, तो खेल रहा है पाकिस्तान के लिए बस, ठीक है. तो that's one thing. But you had potential and you are proving your potential to be right. That's another thing as well. A lot of people have potential लेकिन उस potential को express नहीं कर पाते और वो divert हो जाते हैं. तो अल्लाह ने आपको मौके दिए, अल्लाह ने आपको मौके दिए, and you're doing really well in your life, ठीक है. And I'm genuinely really inspired by Hassan Mansoor's life. A young guy I really look up to in my own circle is Hassan Mansoor, ठीक है. And I'm not saying that जो सामने बैठा हुआ है, I always had bet on this guy. तभी मैं उसका 16 साल का था ये, ठीक है ना. नीड कच्ची मूछें and he used to wear गोल glasses, ठीक है ना, हैरी पॉटर वाली. तब भी I used to say यार ब्रो करते हैं रिकॉर्डिंग्स, ठीक है ना. क्योंकि बिकॉज आई न्यू कि इसमें भी वो कीड़ा है जो मेरे में कीड़ा है, और वो कीड़ा ये है कि हम दोनों जो है राजी ही नहीं होते, ठीक है ना. वी आर शुक्रगुजार अल्हम्दुलिल्लाह. ऑब्वियसली अल्लाह ताला बढ़ाए, हमें तौफीक दे, हम और शुक्रगुजारी करें. अभी भी देयर मस्ट बी लॉट ऑफ लैकिंग्स, लेकिन वो नहीं है कि वी हैव अचीव्ड इट ऑल. नहीं, वैसे तो कोई उम्र भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ है ही दोनों में. बहुत कीड़ा है, बहुत ज़्यादा. इसको ही यूज्ड टू गेट बुलीड, आई यूज्ड टू गेट बुलीड कि क्या व्लॉग कर रहा है यार, तेरी तो आवाज़ नहीं आ रही, बोल कैसे रहा है. हाँ यूज्ड टू बी लाइक अच्छा गुड फॉर यू, आज कौन व्लॉग बनाते हैं, ठीक है. तो ये ग्रिट होना, इज्जत होना कि नहीं करना है. आई थिंक ये छोटे भाई वाली बात भी है, छोटा भाई वाली बात भी है कि यू हैव दिस बैगेज ऑफ बड़े भाई, ठीक है, दैट यू वांट टू परफॉर्म एंड यू वांट टू बी बेटर ऑब्वियसली देन देम, एंड यू हैव थोड़ा सा एच भी है, क्योंकि जो चीज़ें देखी होती हैं हमें थोड़ी सी फेलियर से आप काफ़ी सीख सकते हो. हाँ डेफिनेटली. तो क्या कहते हैं, इसमें वो थी जिद और कीड़ा, एंड माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल. And I wouldn't be surprised to see him, being online as well, coming online on the digital platform as well, making videos as well. I wouldn't be surprised to see him doing stocks as well. I wouldn't be surprised to see him teaching people as well. And I wouldn't be surprised in seeing him in a big suit and a big corporation. ठीक है. सूट तू नहीं पहनेगा बिल्कुल, बट चलें, I get your point. And मैं भी ये बातें तुम्हारे सामने करते भी नहीं कह रहा, बट एक प्लेटफॉर्म है. एक और चीज़ ये है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ही इज़ अ वेरी एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कीप्स दिस प्राइवेट, बट ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्टेबल पर्सन एज वेल फॉर हिज एज, व्हिच इज़ अ वेरी रेयर थिंग. येस, यू कैन ट्रेड ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो आप. ट्रेडिंग करके यू कैन मेक गुड मनी एंड यू कैन प्ले अराउंड एज वेल इन लाइफ. आई नो लॉट ऑफ पीपल एज वेल, बट बीइंग कंटेंटेड, हम्बल, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना, ठीक है. ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता रहता है, ये नहीं कि हर दफ़ा ऐसे होगा. हर राइट अमाउंट एनर्जी होना कि यू फील नाइस बट यू डोंट फील ओवरवेलमिंग, यू डोंट फील अंडरवेलमिंग इज वेल इन अ कम्युनिटी वेयर सिटिंग, ठीक है. यू हैव दिस पॉजिटिव एनर्जी बट यू नो हाउ टू कैन हम्बल योरसेल्फ, ठीक है. एंड ऑब्वियसली देयर इज रूम फॉर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल, बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली दिस गाय इज गोइंग वेरी वेल एज वेल. अल्लाह ताला तो नज़र बद से बचाए पहले तो, दूसरा इसके तौफीक में बरकत डाले खैर में, ताकि और खैर कर सके. तीसरा जो है इसको जो है तारीफें कर दी, मेरे रियाकारी से बचाया ताला. किससे बचाए? रियाकारी से, शोखी से. अच्छा, शो ऑफ से. नहीं यार, ये मतलब वैसे अगेन शोखी वाली बात नहीं है, लेकिन तुम बात काफ़ी वैलिड कर रहे हो. एंड आई स्टिल फील दिस इज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह, कि पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से ही है. एंड स्पिन दिस
way since we were 16, and we went on that YouTubers ka meetup, yaad hai? And it's literally been that same feeling, and I've like been in conferences से मुराद ये नहीं मतलब conferences, talks, I mean like बैठक्स with really huge people, और मतलब huge in financial sense में या social sense में, but I've never felt like कि मैं हल्का हुआ हूँ मतलब I've always felt something different that I can't describe, but I've never felt that I'm below. You feel at par at minimum. ये कौन है? Sometimes even above the par easily. लेकिन मतलब not in like a way कि मैं इनसे बेहतर हूँ या कुछ भी, nothing of that sort, but I've always had that critical thing inside me कि अच्छा नहीं कौन है ये बंदा, I don't know why people are revering him, I don't know him. और and touching on that part, that's something that Bilal has always had as well. और मैं भी I'm just choosing this platform, या मिठू नहीं बन रहा तुम्हारा, but the point is that he has shown the promise that he already had before all of this, obviously. He was always very consistent, जो trait मेरे में नहीं था while I was doing Kuch Kaho TV. He was very consistent. He was able to show up every day, regardless of, you know, whether things were right, regardless of whether he had an internet connection, regardless of whether even he had a laptop, he didn't have a camera, didn't have a room, nothing. He would show up. हालांकि और मेरे अंदर अभी भी ये मसला है that I'm very perfectionist. Everything needs to be like picture perfect, the perfect lighting, the perfect camera, everything needs to be set up. फिर मैं बनाऊंगा, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा. बिलाल का अभी भी, if you guys follow him on his Instagram, I don't know how he's very comfortable कि जब बस गाड़ी ड्राइव कर रहा है वीडियो बनाई. I don't get that part. भाई मैं तो नहीं ऐसे बनाऊं. But like that's him, and he stayed true to his own colors, which is very I like this. honorable in itself, माशाल्लाह. और ये जो एक self respect और एक self confidence है कि मतलब this is who I am, this is who I am, कि मतलब I'm driving and I'm making this video, see me for this, or now you can just unfollow. I think this is very important, and you've hit mashallah 5,000 plus followers as well, and that means कि 5,000 plus लोगों को वो तुम्हारी गाड़ी चलाते हुए वीडियो से कोई मसला नहीं है, which is pretty good mashallah. और उसके अलावा लेकिन I really buy this thought, क्योंकि in this world, in this paradigm, no matter how easy it seems, Pakistan तो एक Islamic country है, holding on to the image of Islam for Islam, ठीक है ना, and I don't want to, you know, tell कि मेरी नीयत कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ठीक है ना, and I'm sure किसी को ये होता भी इतराज़ नहीं होता भी नहीं होगा, ठीक है, किसी सेन बंदे को इतराज़ नहीं होता होगा, लेकिन holding on to the image and the personality which I am and I was शुरू से, ठीक है, regardless of the fact कि जुनैद अकरम को मिल रहे हैं या हम किसी भी XYZ को मिल रहे हैं, ठीक है, I used to be that, I am that, ठीक है. And there were a lot of times यहाँ पे बहुत सी जगहों पे बहुत सी महफिलों में, you know, you feel like यार शायद मैं एक आउटवर्ड लग रहा हूँ, शायद मैं एक अजीब लग रहा हूँ कि दाढ़ी को क्या हो गया मेरी, ठीक है, और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, लोग काफ़ी कहते भी होंगे, कहा भी होगा और कहा है भी, लेकिन it is who I am, ठीक है यार, okay, good for it was never meant to be easy, this path was never meant to be easy as well, ठीक है ना, if I never knew it, तो जो कलर्स वाली बात की, I really take that, वरना मैं कोई अगर पोंगी कोई और कुछ मारता ना तो मैं बिल्कुल कहता बस ठीक है, हो गया आपका, आपने जो है ना कैमरे की कर दी, तारीफ रिमूव कर दिया, मुझे मेरा उधार वापस कर दिया आपने. और एडिशनली बिलाल के अंदर एक ये चीज़ भी, मतलब जो पिछले साल में अगर मैं नोटिस करूँ वाली बात है, दैट और मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है दैट दिस इज़ नॉट हिम, दिस इज़ क्लियरली अल्लाह ताला एट प्ले, ऑब्वियसली, कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ करेज, एंड I've seen that courage come into play, जो कि अच्छे को रुला दे वैसे वक्त भी, and मतलब he stood his ground माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. He's staying true to his intention and he's capitalizing off of it as well, which is a very good, honestly, thing to do, because he has a very good opportunity and he should be working on it. And जैसे you said, I wouldn't be surprised as well कि inshallah in the coming year I see Bilal Saab at some of the best, not the biggest, the best conferences that happen in this region, और Bilal Saab उन
का हिस्सा हूँ इंशाल्लाह. That will be, I think, very possible for me to see इंशाल्लाह. Anything you want to say? कोई शायद एक आध देख ही रहा हो इतनी देर तक ना. कोई ना भी देखा हमारे हमारे बच्चे देख रहे हो कोई 10 साल बाद. अब्बा और हसन चाचू जो है क्या बातें कर रहे थे, ठीक है ना, और बिलाल तायब और बाबा क्या बातें कर रहे थे. अच्छा, ठीक है. Anything you want to say in this moment, ठीक है, जो कि for any मतलब you are in a moment जहाँ पे चीज़ें are going well for you. Obviously there are day in day out. कभी क्लाइंट चला भी जाता है, कभी क्लाइंट बेइज्जती भी कर देता है, कभी काम नहीं भी होता, लेकिन ओवरऑल इन अ होलिस्टिक सेंस चीज़ें आर गोइंग गुड फॉर यू इज वेल. ठीक है ना. देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली हार्मफुल देयर. ठीक है. तो एट दिस मोमेंट हाउ व्हाट आर यू फीलिंग? चलो, I'll say two things, then I'll hand the mic over to you. First thing regarding I don't mean to be sexist here, but generally guys hustle a lot more, right? मेहनत जितनी कर सकते हो उतनी करनी है in life. Literally give it your level best. बाकी फजल तो अल्लाह ताला देता है, हर चीज़ में नेमतें तो अल्लाह ताला ने ला के देनी है, और रिजल्ट्स अल्लाह ताला लेके आएंगे. You just have to give it your level best regarding work. And regarding generally how to live life, I think you should try your level best to have as much fun as possible and to relieve yourself of the anxieties that you have in your life. Otherwise life chill हो गया, easy हो गया, सब कुछ हो जाता है. जो मर्जी हो जाए कुछ भी नहीं होता. Right? I think that's all that I have to say. What about you? What about me is कि at the very philosophical core of reality, all we have is intention. Free will से पहले will starts from here and most of the time it ends here as well. There is a very interesting hadith कि इंसान को स्वाब मिलता है हर उस अच्छी नीयत का जो वो करे, लेकिन उसको मौका ना मिले करने का, और उसको जो सोचे ऑब्वियसली जो सोचे लेकिन उसको मौका नहीं मिला करने का, उसको हर चीज़ का स्वाब मिलता है बिकॉज इट्स लाइक अ इवेंट क्रिएटेड ऑलरेडी. ठीक है. इट्स लाइक इवेंट क्रिएटेड ऑलरेडी. हाँ, अगर मौका मिल गया और आप नहीं कर पाए तो फिर स्वाब नहीं मिलेगा. वेरी पावरफुल हदीस. लुक एट इट थोड़ा डीपर लेंस में कि ऑल यू हैव एट दिस मोमेंट इज इंटेंशन. इट ऑल स्टार्ट्स विद इंटेंशन. हसल, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी, लीडरशिप, एवरीथिंग अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, गुड है, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विद इंटेंशन. एंड समटाइम्स इंटेंशन, व्हेन द इंटेंशन इज राइट, इंटेंशन इज एट प्लेस, अल्लाह ऐसे हाथ पकड़ता है कि आपको समझ नहीं आती क्या हुआ है. एंड यू कैन रैशनलाइज इट बाद में बैठ के ऑन अ वीडियो सामने बैठ के कि हाँ भाई इसने एक्चुअली ये किया मैंने, बट खुदा की कसम मुझे नहीं पता क्या हुआ है. ठीक है ना. अभी मेरी तारीफ भी अल्लाह ताला, कितनी खूबसूरत बात है अल्लाह ताला की कि मुझे तौफीक दी, मुझसे काम करवाया, काम करवाने के बाद मुझे स्वाब भी दिया, और तारीफ भी मेरी हो रही है. ठीक है. तो इंटेंशन शुड बी राइट देयर, प्लस यू शुड बी वेरी 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 फर्म ऑन योर वैल्यूज, वेरी फर्म ऑन योर वैल्यूज, टू अ पॉइंट कि उसके लिए जंग लड़नी पड़े, टू अ पॉइंट उसके लिए यहाँ से जंग लड़नी पड़े, बाहर जंग लड़नी पड़े, मारे खानी पड़े, बेइज्जती सुननी पड़े, सलाहत सुननी पड़े, मॉक डेट होना पड़े. ठीक है ना. बीइंग कंसिडर्ड नोबडी होना पड़े, कुछ भी होना पड़े. इफ यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स, you should stay very true to it, because only then you will have your own originality, your own colors. वरना आप एक ना उसकी तरह क्रिकेट की तरह इधर रंग बदलोगे, उधर जाओगे, उधर रंग बदलोगे, उधर जाओगे, उधर रंग बदलोगे, and you will meet someone who might be very rich, who might be very famous, who might be very powerful as well, but he does not have any grounds to stand on. ठीक है. And these two things have really worked for me in life generally. ठीक है ना. मतलब मेरे नियत और इवन आई वुड इवन से कोशिश, नियत सबब अल्लाह बनाता है, उठाता भी अल्लाह ताला है. बिस्तर से आपको उठा देगा. इधर आप यू लाइक नो वेयर, कल आप डिप्रेस्ड हुए सुबह उठे हो, यू लाइक हाँ आओ आज मैं प्रोडक्टिव थिंग करूँगा. यू लाइक मैंने ना कोई खाना चेंज किया, ना आपको मैं डीप थॉट्स पे गया, ना मैं जर्नलिंग की, ना रिफ्लेक्शन की, ना मेडिटेशन की, कुछ भी नहीं किया.
बस वक्त आ गया था, तरफ से वक्त था, घड़ी थी, मैं उठ गया. तो इंटेंशन एंड प्रिंसिपल्स, चूँकि जिस ज़माने में बहुत आसान है टू बी चैलेंज्ड, बहुत आसान है टू बी क्रिटिसाइज्ड, बट यू नीड टू स्टैंड ऑन वेरी फर्म ग्राउंड एंड यू नीड टू बी लुक इनटू अदर पीपल इनटू आई कि ठीक है, यू माइट बी द रिचेस्ट, यू माइट बी द कूलेस्ट, यू माइट बी क्या कहते हैं उसको, द स्मार्टेस्ट और द मोस्ट फेमस गाय, बट मैं भी रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, हल्का मैं भी नहीं हूँ. ठीक है. एंड दिस गिव्स यू, वो ये बात है ना कि मैं कमरे में जाता हूँ तो मुझे महसूस नहीं होता कि बंदा को बड़ा कोई प्लेयर है, इसलिए प्लेयर नहीं है. ठीक है, अच्छा है, यू हैव डन वेल इन योर लाइफ, गुड फॉर यू, अल्लाह ताला आपको और दे, लेकिन तुम्हारा कोई भार थोड़ी है मेरे पे, तुम्हारा मकरूज थोड़ी हूँ मैं, तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूँ मैं. एग्जैक्टली. ठीक है, मैं तो गुलाम उनका हूँ. आप कौन हो? अच्छा है, अच्छे हो आप भी, ठीक है ना भाइयों मेरे, आई लव यू, रिस्पेक्ट यू, सरताज, लेकिन गुलाम उनका. And with that very wise note, let's end this catch-up video. And this was very fun, very cathartic as well. And I hope to see all of you next year as well, inshallah. Next year as well. So we can discuss that. Maybe in the 6 months, but let's say next year. मेरे दिमाग में है. Maybe you can make a comeback as well. कम बैक की कोई जरूरत नहीं है यार. नहीं, ऐसे कभी कभार वी मीट लॉट ऑफ पीपल, अब बहुत लॉट ऑफ वेरी वेरी फन पीपल, वी कैन हैव कन्वर्सेशंस विद देम. यार अभी तो मतलब आई डोंट सी नॉट एज अ प्रॉपर स्केड्यूल के हमने हर वीक की बनानी है, हर मंथ में बनानी है, बट समटाइम लाइक वी मेट ज़ैनत इरफान एंड वी डिडंट अपलोड दैट पॉडकास्ट. वी डिड. नो वी डिडंट अपलोड ही नहीं किया नहीं. हमने पॉडकास्ट बनाई थी, इसकी गलती है. मैं तो कहा था अपलोड रेडी तो इस तरह के बड़े कूल लोगों से मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं. चलो वी कैन थिंक अबाउट इट. आई डोंट हैव रिजर्वेशंस, लेकिन बस मसला ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही साल रह गया है, बट बस विद यूनिवर्सिटी द ट्रूथ इज कि बस सब ले लेती है, सब ले लेती है. इसके साथ बस डिजिटली ही आप काम कुछ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, physically it's just impossible. How's love going? On a very final note. Alhamdulillah, it's going very well. It's going very well. On an academic level, मैं बात करूँ, okay. Enjoying my academics. Very nice. Which I wasn't expecting. Because मैं इतना academically inclined नहीं हूँ. Okay. But I'm able to teach things that I like studying, which is fun, alhamdulillah. And I have a very, very nice, intimate group of friends as well. How do you rate academically? I've never asked this question to you. Academically, how important you see me? Have you ever read something I have written or मैंने भाई अगली वाली बुक gone through my videos, कोई डिटेल वाली, कोई चीप तगड़ी वाली? ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा इससे, कभी हमारी इस बारे में बात भी नहीं हुई. तुम शायद वर्ड बहुत गलत यूज कर रहे हो. एकेडमिकली तो मैं रेट ही नहीं कर सकता बिकॉज यू नॉट एन एकेडमिक. अगर तुम कह रहे हो एकेडमिक वर्ड, लेकिन नहीं why not? देखो आप एकेडमिक तब बनते हो व्हेन यू मैं लिटरली if you're saying कि वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी बात नहीं होती, बट मतलब वो एक मतलब यू नीड टू हैव दोस एकेडमिक सर्टिफिकेशंस इज अ मिजाज ना, इट्स नॉट. नहीं, वो एक स्कॉलर होता है, एक स्कॉलर या एक लर्नर ऑफ नॉलेज होता है. यार स्टूडेंट ऑफ नॉलेज कह लो यार. अच्छा, एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, वो टर्म यूज करनी है तो वो एक डिफरेंट टर्म है. अच्छा, हाउ डू आई परसीव यू as a student of knowledge and how you doing इस तरह से. You never told me about this. वैसे तो I don't find even using academic for me, obviously a newbie या wannabe whatever you call it, but academic लफ्ज़ में बैठ जाता है, ठीक है ना. अच्छा, मैं शायद academic को गलत चीज़ समझ रहा था. और आप वो वाली ले रहे हो. मैं शायद वो literal term में ले रहा हूँ. यार the blunt reply would be that your start was very messy. But again, as I said, you showed up and you then kept on showing up. You wrote another book. You made a lot of other videos. You kept on making videos. और जैसे मैं शुरू में बात नहीं कर रहा था that I got good at something because I made so many mistakes, which is I think really true in your part as well. That you made a lot of mistakes, जिसकी वजह से you were able to learn a lot as well and very quickly. जब आप इतना ज़्यादा जल्दी शो अप करते हो ना, when you make so many things, you're able to iterate very quickly as well. और if I was to
see you rating तो उस पर कोई नहीं बनती, एक opinion ही बनता है कि if I was to see you at where you are right now, I would honestly say that I never even expected you to be at this place. Not saying I underestimated you, but I never saw कि Mohammad Bilal Ali would become an eloquent speaker and Mohammad Bilal Ali would be able to write like an academic. Mashallah. Alhamdulillah, I guess. So yeah. I think good enough. वो बातें तो बहुत कर सकते हैं. No, 7 minutes हो गए. I wasn't expecting. मैंने कहा था 15 मिनट की बात होगी बस. शुरू करें. अभी तो काफी डीप जा सकते हैं हम लोग. ठीक है ना. I wouldn't be surprised अगर इस तरह के मैसेज कभी रोज शुरू करते. ठीक है ना. जो कि 2-3 दफा गूज़बम्प्स मुझे भी आए हैं. 2-3 दफा ये भी बहुत हार्ड टच हुआ है. फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके ना शिफ्ट किया बाइक को. ठीक है ना. But this was fun and we should do this often inshallah. Yeah. And yeah, we'll see you guys sometime soon inshallah. All right. Thank you. If anyone watched till the end.